Hey everybody, good evening. Welcome to the Paradigm Shift. Happy Navratri to all of you. Today we're going to be in conversation with a dynamic mother-daughter duo, Shakuntala Pandya and Soumya Pandya Thakkar. They are both internationally recognized 3D artists. They have 2 records with Limca Book of Records and 1 record with India Book of Records. So let's welcome Soumya and Shakuntala ji. Hey everybody, hey Monisha, hey Krishna. We're just waiting for them to join. Hey Kaushal. Hello. Hi, good Hi, good evening. evening. Hi, Deepshika, and all the Mumbaikars and all the Guju friends. Yes. Yes. Soumya, there is Soumya, coming there a is lot of oh, oh, I can I can sound, I sound, can I can double again. double Can you again. just Can you connect just your, connect your earplug? yeah, I don't know what is the problem with this. Okay. Yeah, we're good. And do you want to just bring your camera a little here because I think there's Down? a lot of, yeah, perfect. That sounds good. That sounds good. Yeah. Am I looking Okay. beautiful? Not But you as her. You guys are looking absolutely beautiful. Happy Navratri to both of you. Welcome to the Same to Paradigm Shift. you. Oh, you can't hear us giving over. Okay. So you guys are missing you guys are missing the garbas. A lot, and we are Yes. die-hard fan of it. और हम लगभग 1 महीने तो प्रैक्टिस करते हैं, करवाते हैं हमारे फिटनेस क्लब में, और Wow. एक भी दिन मिस नहीं करते नवरात्रि का. तो ये हमारे लिए बहुत ही पहला अवसर है जब हम बैठे हैं, बट हम दोनों घर पे तो गरबा करने ही वाले हैं. Missing, yeah. Missing with group. Yes. Missing with Please, friends, yeah. yeah, please let me join in, okay? The minute you guys Yeah, go yeah. live Yeah, on yeah. Garba. Definitely. Done. So, Shakuntala ji, we'll first Yes. start with you Yeah. because you are like, how it started. I was speaking to Soumya and I was telling her कि, Soumya, मुझे आपका interview लेना है and ये वो and all that. And then I explained the concept of the paradigm shift. And the first thing she tells me, Shakuntala ji, is that, Yeah. you know what? My mother is absolutely apt for this platform because you start your own fitness club at the age of 50, which I Yes. think is phenomenal. तो आप बताइए, like आपके हिसाब से paradigm shift क्या होता है? Yeah. For me, paradigm shift is to accomplish my passion into my profession in the later age of my life. And when people thinking about retirement, I selected harder and better activity of my choice, which Wow. gives me more happiness and satisfaction. Oh my God. I Yeah. know, seriously, मतलब actually, like once you're turning 50, you think कि अच्छा बस हो गया जो करना है, बच्चे बड़े हो गए, Yeah. शादी हो गई, सबका सब सेटल हो गए, अब थोड़ा सा पूजा पाठ and all, and here you go start a new business all over again, which is so cool. So, Yeah. tell our viewers what is your story about the paradigm shift. We love to hear it. Yeah. All knows that after marriage, every woman's life is the same. बच्चे Right. पालना, householding, but for Anji. me, earning as well. Okay. So मेरे 25 years इतने दौड़ धाम में गए, मीन्स कि मुझे अपने लिए सोचने का जरा भी टाइम नहीं मिला, मीन्स सोचा ही नहीं, मीन्स आई हैव टू थिंक बट आई डिडंट. ये मेरी भूल भी है, बिकॉज मैं अच्छा वाला टाइम ऐसे ही निकल गया. तो बट जब बच्चे बड़े हो गए
और मेरी लाइफ में दो दो चार चीजें ऐसी भी हो गई कि मुझे आई फोर्स टू थिंक। जैसे मेरे लेफ्ट लेग में लिगामेंट का प्रॉब्लम हो गया, तो 3-4 डॉक्टर ने बोला कि आपको तो ऑपरेट ऑपरेट करना पड़ेगा। ओ और मैंने पता नहीं क्यों अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, मीन्स जॉब छोड़ दी। मेरी अच्छी जॉब थी जीएसएफसी में एज अ वेब डिजाइनर। तो आई ओके लेफ्ट, या तो आई लेफ्ट ओके माय जॉब। एंड मेनोपॉज का पीरियड भी होता है वो 45-50 इयर्स। तो ऑल टुगेदर आई दैट टाइम वाज नॉट नॉट गुड टाइम। एक्चुअली आई वाज राइट सो डिप्रेस्ड एंड डिस्टर्ब दैट टाइम। सो मुझे लगा कि मुझे अभी मेरे लिए कुछ सोचना चाहिए। सो हम्म मैंने बहुत सोचा, फिर सोचा कि मुझे क्या पसंद है, मुझे वही करना था जो मुझे अच्छा लगे। हाँ जी तो मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है। तो मुझे बचपन मेरा याद आया, क्योंकि सबका बचपन ही सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ होता है ना। किसी को पूछे कि आपका लाइफ का क्या है, तो वो डेफिनेटली चाइल्डहुड ही बताएंगे। सो थोड़ा मैं अपना चाइल्डहुड के बारे में भी बताती हूँ। माय पेरेंट्स वेर, मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। मीन्स माय ओके फादर वाज अ फार्मर एंड देन बिजनेसमैन। ओके बट माय पेरेंट्स आर सो गुड, दे नेवर डिस्क्रिमिनेटेड मी। मेरे 5 भाई है, मैं अकेली बहन हूँ। बट उनको जो भी फ्रीडम मिला वो सब मुझे मिला। सो तो गुड मैं यहाँ, और मेरा क्या था, आई आउटडोर गेम्स एंड लड़कों की गेम्स। क्योंकि 5 भाई, मेरे घर कुछ ज्यादा लड़कियां नहीं आती थी, क्योंकि 5 घर जेंट्स लड़के घर में होते। तो मुझे नॉट कंपलसरी, या कंपलसरी लड़कों के साथ ही खेलना पड़ा मुझे। तो मेरा ब्रॉटअप लाइक टॉम बॉय। ओके लेकिन ये सब मुझे कहाँ काम आया कि मैं स्कूल एंड कॉलेजेस में स्पोर्ट्स में हर चैंपियनशिप में मैं मिस फर्स्ट आती थी। तो मैंने बहुत सारी ट्रॉफीज स्कूल एंड कॉलेजेस लेवल में, पढ़ाई में राइट भी थोड़ी अच्छी थी मैं। एंड मुझे ओके पेंटिंग एंड ड्राइंग का भी बहुत शौक था। मैं बताऊं कि मेरी जो हमारी हम लोग, मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था। हाँ तो जी हमको डिस्क्रिप्टिव तो लिखना बहुत होता था, इतनी इतनी बुक्स होती थी। सो मेरा जो नोटबुक का हर मार्जिन होता है वो मैं डिजाइनिंग किया करती थी डेली। मीन्स लेक्चर इन, जब भी कुछ थिंकिंग हो तो मेरा हाथ। सो मेरा पहले से भी मुझे ये शौक था। तो ये मेरा पैशन था, स्पोर्ट्स एंड पेंटिंग। सो मैंने राइट सोचा कि वो ही बिजनेस मुझे करना है। ऐसा सोच के मैंने हाँ फिटनेस स्टूडियो एंड वेट ब्रश, स्लिम सेल्फ क्लब उसका नाम है, एंड वेट ब्रश आर्ट्स विद सौम्या। सो मैंने वाह वो 50 के अराउंड एज थी मेरी उस टाइम, मैंने ये खेला। दिस इज माय बिगेस्ट पैराडाइम यस शिफ्ट। या दैट इज सो गुड दैट इज सो या गुड या मतलब इतना मीन्स यू नो जो आप बोल रहे हो आई थिंक हम लोग सब वी कैन यू नो रिलेट टू दिस बिकॉज यही चीज सबके साथ होती है एवरी वुमन या के साथ लाइक हाँ आपके वही। जो भी आपका जो भी पैशन है जो भी है यू हैव टू यू नो गेट इन लाइन एंड अलाइन दैट विथ योर फैमिली विथ योर चिल्ड्रन विथ योर हस्बैंड लाइक इफ आई हैव टू टेल अबाउट मी आई वाज अ डिजाइनर बट आई वाज मैरिड टू माय हस्बैंड इज अ मरीन इंजीनियर तो वो सेल करते थे तो we used to be 4 on 4 off 4 on we used to sail and then we used to या do this so who's going to give me a job for you know 4 months हम्म। so I just you know left all that and I just sailed and then had my babies and all that and like you I started very late I mean not at 50 but say about 40ish I must have started my designing and you know all of this so yes I mean नाइस। you are actually a role model I'm sure for a lot थैंक of यू। people जिन्होंने अभी तक अपना पैशन शुरू नहीं किया है सब लोग आज देखेंगे they'll all start I think या सब सोचते हैं, लेकिन उसको एप्लीकेशन में रखना मीन्स कुछ करना, वो सोच के कुछ करना वही बड़ी बात है। सोचते तो बड़ी बहुत बात है हम कि ये करना है वो करना है। हाँ जी तो ये जब जर्नी आपको शुरू करनी थी आपको ये हाँ, आपके बिजनेस से शुरू करने थे इसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए एक्चुअली ज्यादा ऑब्स्टिकल कुछ आए नहीं है, लेकिन माय माय लाइफ वाज वेरी हार्ड। आई लिव ओके वेरी हार्ड लाइफ। सो छोटे बड़े जो भी ऑब्स्टिकल आए मैंने उसको ओवरकम किया, इग्नोर किया, एंड आई कॉन्सेंट्रेटेड इन माय व्हाट इज द वर्क दैट टाइम। so good so good
So that is that, but that is good to hear, you know, कि हाँ के बगैर छोटे छोटे this, you know, but you know, हाँ, कंप्लेन नहीं किया मैंने, नेवर कंप्लेन। और पैसा का मुझे प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैंने VRS लिया, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड आई परचेज माय प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी एंड देन स्टार्टेड। Yeah. very good. That is, you know, it feels so good to hear things like that, you know. Okay, and where are you now today, शकुंतला जी? मतलब ये सब पैराडाइम शिफ्ट का इम्पैक्ट क्या है आपके लाइफ में? आप आज कहाँ हो? Actually, a very wide and very positive impact, you know, कि मैं राइट नाउ आई एम 66 years old, और ये उम्र में मैं मेरी यही उम्र की जो वुमेन्स को देखती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि आई एम समथिंग डिफरेंट। Yes. तो अभी मैं जो क्लास में मेरा एरोबिक्स होता है उसमें डायनेमिक जुम्बा जैसा एरोबिक्स होता है, जंपिंग एंड ऑल, वो करती हूँ मैं। योगासन मीन्स हार्ड पोजेज लाइक बकासन, क्रो पोज एंड एवरीथिंग, हाथ पे मीन्स हार्ड पोजेज भी करती हूँ। सो Wow. एंड पेंटिंग तो मेरा है ही है, फिर सालसा भी मैं करती हूँ, और गरबा सालसा भी करती हूँ बहुत। उसे सालसा करते हुए किसी रिपोर्टर ने लास्ट ईयर कैप्चर कर लिया। हाँ, मैं गरबा में भी, गरबा हमारे सालसा गरबा थे तो सालसा कर रहे हैं मेरे साथ। और मैं बाहर नहीं दिखती, मेरा वो हार्ड लक क्या है कि मुझे कोई पहचानता नहीं है कि ये 66 की है, तो मैं इतनी लाइमलाइट में नहीं हूँ अगर किसी को पता चले कि ये 60, तो मुझे इस साल है ना ये व्हाइट करके और गुजराती साड़ी पहन के कुछ करना है, तो आई विल डेफिनेटली बिकम वायरल। वो अभी एक लड़की ने वो साड़ी पहन के वो हुला हुप किया था ना, तो वो साड़ी के वजह से शी बिकेम वो यस, मैंने वही बोला कि वायरल होना है तो कुछ अलग सा कुछ कर लो बट गॉड ग्रेस का हमने अच्छे सब्जेक्ट में हम वायरल हुए थे। राइट। So that is so nice, you know, Shakuntala ji. So what is now we will talk to your daughter, who is so charming and so pretty, just like you. You know, she's so in awe of you. You know, the मतलब मुझे वही टाइम याद आता है कि जैसे ही मैंने उसको बोला कि अच्छा पैराडाइम शिफ्ट के लिए I want you to be interviewed, खट से she says no, my mother has. Yes. I have so many things to say, but later on. You keep adding as so many talk, you know, you can. Yeah. Soumya, you tell us, ki, what does paradigm shift mean to you? For me, it is to identify an unidentified power of art. Wow. So, initially, for me, painting was just a luxurious product for the beautification of the wall. But later on, when I realized that art can save lives, and God chose me to prove it for the first time in our country, and that was the paradigm shift for me. Wow. You know, I'm getting goosebumps as you're saying. That is so good. So tell us your story, Soumya. Tell us exactly, tell our viewers. I'm sure they know already because we've written so many things about you in our promo, but still, let's hear your story. See, my art story is based on my love story. Okay. तो अगर लव स्टोरी पे प्रोफेशन शुरू हुआ है तो ताजमहल तो ऊपर बनना ही था। So good. So good. और एज यू कैन सी मेरे पेरेंट्स जैसे है ऐसे जो आप देख सकते हो, तो फिर ये डबल ही होगी मेरे से। अपब्रिंगिंग जो है उसकी वजह से मुझे मैं बहुत ही छोटी थी तब मुझे बहुत सारे टाइप के स्किल्स डेवलप करने में मुझे मदद मिली। यानी हम जब बच्चे होते तो हमें नहीं पता है कि हमारी एनर्जी को कहाँ ले जाना है, बट अगर पेरेंट्स उस साइंटिफिक डेवलपमेंट करे कि हमें क्या खाना है, क्या न्यूट्रिशन, क्या एक्टिविटी करनी है, हमारी टाइम मैनेजमेंट की जो पूरा जो सिस्टम है वो एक बहुत ही साइंटिफिक वे में मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ बिना मांगे हुए दिया है, बट फिर भी अगर कुछ लो पोजीशन आए, कुछ खराब हो, तब भी कैसे ऐसे ही रहना है जैसे हम हैं, वो भी साथ में सिखाया है। तो वो दोनों चीजें मुझे सीखने को मिली। और क्या हुआ कि स्कूल में मेरा बेस्ट फ्रेंड है पार्थ ठक्कर, जो अब मेरा हस्बैंड है, तो वी वे इन लव। तो हम क्या करते थे, हम
बहुत हमने साथ में फोटोग्राफी का हमें शौक चढ़ा था, तो हम नेचर को बहुत ही माइन्यूटली मार्क करते थे, घंटों तक सारे इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो क्योंकि हम बचपन से स्काई देख रहे हैं तो हमें उतना क्या अजीब नहीं लग रहा, बट मैंने जब फोटोग्राफी शुरू की तब मैंने देखा कि अरे दिस इज अ वाइड कैनवास एंड पेंटिंग इज हैपनिंग एवरी डे, and look at the texture of the insect, or look at the behavior of these two birds, और एक को कुछ लगा तो दूसरा एनिमल आके वहां पे खड़ा रह रहा है। तो ये जो इमोशंस मैंने ये फोटोग्राफी स्किल्स डेवलप करते हुए मैंने ये फील किया कि भगवान और हम क्या है, एनिमल क्या है, ये सब अजीब सी चीजें मुझे सीखने को मिल रही थी। और साथ साथ में हम थोड़ा सा सोशल वर्क जो हम फ्री टाइम में कर रहे थे कि हम स्लम्स किड्स को पढ़ाने जाते थे, हम ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है उनके साथ खेलते थे। तो ये तब मुझे मटीरियलिज्म की तरफ मुझे ज्यादा नहीं जाना है, वो रियलाइजेशन हुआ कि बहुत ही बड़ी कार है आपके पास, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पास जो कार है और आपके बाजू में जो बैठा है वो आपसे कितना प्यार करता है, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें मुझे बहुत ही जल्दी मार्क हो गई थी। तो एक था कि मैं जो भी बनूं लाइफ में तो सिर्फ उसका ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बिजनेस मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे मेरा नाम हो रहा है। ऐसा कुछ मेरी स्किल्स और मेरे आइडियाज से बनना चाहिए जिसके और 2-3 फायदे सोशली हो दूसरों के लिए। क्योंकि मैंने मार्क किया कि नेचर को मार्क करते हुए मैंने रियलाइज किया कि हम सब एक ही है, वी आर ऑल, दिस इज अबाउट ह्यूमैनिटी, इट्स नॉट अबाउट मी एंड माई फैमिली ओनली। तो और मैं छोटी छोटी इनोवेशन से बहुत ही अट्रैक्ट हो जाती थी कि ये सेफ्टी पिन कैसे बनाई, हम सब उसे यूज कर रहे हैं, या फिर ये रोटी ऐसे ही बनाते हैं, वो हमने सारे आइडियाज लिए हैं और हम इजी बना रहे हैं लाइफ। तो क्या हम अपना आइडिया जनरेट करके किसी और की लाइफ और या फिर फ्यूचर वो कैसे बेटर करें। तो दैट वाज माय पर्पस। तो शुरू में एज आई सेड कि मैंने नेचर और हेरिटेज पे कैनवास पेंटिंग्स शुरू किए, और फिर मैंने सडनली रियलाइज किया कि ये पेंटिंग्स तो सिर्फ वही लोग देखने आ रहे हैं जो ऑलरेडी समझते हैं कि हाँ इम्पोर्टेंट है, हाँ ये सब इम्पोर्टेंट है, ये वो दे नो। तो मेरे तो वो व्यूअर्स एक्चुअली नहीं थे जहां पे मुझे वो मैसेज पहुंचाना था। तो मुझे पब्लिक और मेरा क्या है कि मैं जो भी सोचती हूँ ना वो भगवान नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अपने आप ही देते थे मुझे। तो मैंने कुछ ज्यादा हाथ पैर मारे नहीं है, शायद मेरे इंटेंशंस अच्छे रहे हैं, तो भगवान की मैं ज्यादा प्यारी बच्ची रही हूँ तो अपने आप ही सब मिलता रहा। तो मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक पब्लिक प्लेस में मिला और उनको चाहिए था कि सिटी में कभी ना हुआ हो ऐसा कुछ आर्ट आपको करना है। मैंने बोला ओके आई डू इट। और फिर मेरा धक 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 चालू कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मैंने कभी तो क्या करूँ जो कभी किसी ने नहीं किया यहाँ पे। और मैं हूँ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, ना ही मैंने कोई 5 साल का कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया। तो ऐसे वहां पे मैंने सबसे पहले 3D आर्टवर्क बनाया। और एज आई सेड के पता नहीं कैसे सब हुआ, ट्रायल एंड एरर एंड हार्ड वर्क एंड फोकसिंग एट वन साइड। तो सबसे पहला वहां पे बना। और वहां पे मैंने मार्क किया कि पहले तो हमको सबको इनवाइट करना पड़ता था कि आप देखने आइए, आप ये ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो क्योंकि फोटोग्राफी के लिए फेमस है, इंटरैक्टिव आर्ट है ना, तो वहां पे सब भीड़ लगा रहे थे और धक्का दे रहे थे एक दूसरे को। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इफ वी एड ऑन क्यूरियोसिटी इन पीपल्स ब्रेन तो ऐसा ह्यूमन बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं। और अब वो पॉइंट में मुझे लगा कि अब इसका कहाँ यूज हो सकता है। उतने में ही ऊपर से आया ऑर्डर ऊपर से नेक्स्ट ऑर्डर आया कि एक स्कूल है और वहां पे एक प्राइवेट कंपनी है, हाईवा अथॉरिटी से मुझे कॉल आया कि एक स्कूल के पास पिछले साल 3
डेथ हुई थी हाई स्पीड की वजह से, वो हाईवे के पास है। हाँ तो जी, अब क्या हम पेंटिंग वहां पे करके ये स्पीड रिडक्शन कर सकते हैं? तो अगेन आई सेड यस, और Yes. फिर वापस करे कैसे? मैंने तो आज तक कभी लाइव 3D पेंटिंग देखा ही नहीं, मैंने जो किया है वो ट्रायल एंड एरर से किया। तो राइट, अब वहां पे वो जो थे अथॉरिटी, उसने बोला बेटा आप करो, कुछ भी गलती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं, आप बस करो। और मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव, मेरे माँ बाप सब एकदम, बेटा करो। तो वो हाँ। टेंशन तो और कोई नहीं थी, बट एक लिमिटेशन था इसका, ये कि 3D आर्टवर्क तो सिर्फ कैमरा से ही आप देख सकते हो, वो भी स्पेसिफिक पॉइंट से, ठीक है। और ये इवेंट्स के लिए और फोटो सेशन के लिए या सेल्फी कॉर्नर्स के लिए ज्यादा हम करते थे अब तक। बट अब मुझे जो फास्ट लेन पे ड्राइवर्स आ रहे हैं, जो जिनकी स्पीड भी 100 की स्पीड पे आ रहे हैं, 80 एंड मोर देन दैट, तो उन्हें बेयर आइज से सेफ डिस्टेंस से कैसे वो इल्यूजन दिखाऊं। करेक्ट, तो वो आज तक किसी ने वो डायमेंशंस नहीं सोचे हैं कि हम आंखों से कैसे 3D दिखाएं। और इसके लिए मैंने लगभग 3 महीना कंटिन्यूअस अलग अलग डायमेंशंस बनाए, मैं खुद वो बनाई, फिर कार में बैठी, जाऊं ये चेंजेस करूं, ऐसे लाइव। तो ऐसे वो डायमेंशंस बने और हमने अप्लाई किया और yes, and that was the paradigm shift, that moment when I did right. it. Absolutely. Yeah. So you've already talked about the obstacles की, fast moving and all of that. But tell me, ये जो मतलब आपने ये जब किया, so like where all in India have you done this? अपना मतलब, and then you obviously got recognized for this, and आपने इंडिया में और भी जगह पे ये पेंट किया है. So कहाँ पे पेंट किया है? सबसे पहले मैंने कलोल में, अहमदाबाद महसाना हाईवे पे, सबसे पहला जो इंडिया का सबसे पहला था, और वो बहुत ही कलरफुल था और ब्राइट ब्लू कलर। और उन्होंने अथॉरिटीज ने मार्क किया कि वहां पे सभी की स्पीड कम हो रही है। ओके। इसलिए उन्होंने मुझे 1-2 और डिजाइन्स पे काम करने का सलाह दिया, जिसमें कम कलर्स हो और बेसिक कलर्स, जिससे हम ज्यादा जगहों पे इजीली स्प्रेड कर सके। हाँ। तो हमने फर्स्ट 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग शंकुस वाटर पार्क है अहमदाबाद महसाना हाईवे पे ही, तो वहां पे उस स्पॉट पे किया। देयर वाज कॉलेज नियर बाय, और फिर एक छतराल है हाईवे, वहां पे सेम रोड। तो ये 3 हो रहे थे। अब सडनली पता नहीं कैसे वो वायरल हो गया और ग्लोबली दैट स्प्रेडेड, अफ्रीका एंड इंडोनेशिया एंड स्पेन, और हर जगह से हमें विशेज आ रही थी कि दैट मदर डॉटर ड्यूओ डिड समथिंग अनयूजुअल। और मैं तब तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि मैंने कुछ बड़ा किया है। ओके। तब तक तो मेरा पूरा फोकस यही था कि ये मैं कैसे करूं, ये नेक्स्ट कैसे करूं, ये कैसे। और ये था कि जो इतना हैवी ट्रैफिक वाला जो रोड है, उनको ये हमारी वजह से डाइवर्ट करते थे स्मॉलर रूट पे। तो तो अथॉरिटीज ने बोला था कि अगर कभी जाम हुआ तो हमें वापस खोलना पड़ेगा, आपको इन बिटवीन सबको हिलाना पड़ेगा। तो ये था कि हमें मिनिमम टाइम पे उसे अप्लाई करना है। तो जितने भी दिमाग के सारे तार हिला के कैसे हम इसे फास्ट करें, और इट इज द बिगेस्ट, लाइक अराउंड 70 फीट to 30 फीट। और हमने जो उसके बाद दिल्ली में किया, ये सब जब ग्लोबली फेमस हुआ, तब मुझे अहमदाबाद ये इंडियन मिनिस्ट्री में नितिन गडकरी जो है, श्री नितिन गडकरी, he called us there and asked us to create one artwork there and near Central Road Research Institute। तो उन्होंने आर्टवर्क होने से पहले और आर्टवर्क होने के बाद कितना स्पीड का डिफरेंस आ रहा है उसके बारे में रिसर्च किया। और and they found that because of this artwork they found up to 20.3% of speed reduction। अब अकॉर्डिंग टू WHO सिर्फ
5% स्पीड कम होने से 30% तक के बड़े एक्सीडेंट्स जिससे डेथ होती है वो हम ड्रॉप कर सकते हैं। और हमारे वर्क से तो 20.3% तक का स्पीड रिडक्शन आया। और ये शायद सबसे पहला ये आर्टवर्क था जिसपे रिसर्च हुआ है और इसका रिपोर्ट आया है। तो ये देखा, फिर हमें वहां से मिनिस्ट्री ने अवार्ड दिया। Then we got invitation at TEDx Amsterdam to give speech. TEDx speaker. That is so good. I've seen that video. That was amazing. Yes, and then we got invitation from different TEDx from other places. But I am a little camera conscious person, so I didn't go. Oh, so sad. Okay. So, but ये जब when you have to do this with the government and officials and all that, so is there a lot of permissions और ये सब problems कि ये सब obstacles आपको नहीं आए? जी नहीं, मैंने जैसे बोला कि उन्होंने सामने से ही मुझे अब तक जितना भी काम मिला है वो उन्होंने सामने से मुझे ढूंढ लिया और ये हुआ है। So good. So but ये है कि किसी का भी इंटेंशन अगर अच्छा हो, आप ऐसी ऑरा जनरेट करे कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो और आपके आसपास के लोगों को भी आप यू आर गिविंग पॉजिटिव वाइब्स, डूइंग गुड थिंग्स, तो अच्छा चीजें अपने आप ही वापस आ जाती है। तो आई बिलीव इन कर्मा। या absolutely that is such a beautiful thing to say. So and you have 2 records with the Limca Book of Records and 1 with the India Book of Records. Tell us about that. Yeah, the one we painted at Kalol was the first India Book of Record and Limca Book of Record. हाँ। और एक बार हमने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ एक शेडो आर्ट वर्क बनाया था जो इंडिया का सबसे बड़ा लाइव डिस्प्ले था, शेडो था। तो दैट वाज आवर फर्स्ट लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बिफोर ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। और वो सभी पॉइंट पे ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कुछ अनयूजुअल कर रही हूँ। लेटर ऑन आई रियलाइज अच्छा ये क्योंकि मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि कुछ बड़ा करूं, सब अपने आप होता गया। शायद मेरे आसपास जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो ये वाइब्स। हाँ I know, so sweet that is. And Soumya, so tell us कि ये paradigm shift का with obstacles with your story, where are you now? What is the impact of the paradigm shift? जी देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो भी डिजाइन्स हैं उनके राइट्स हम शेयर कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ बैठे बैठे हर कंट्रीज में सब इंस्पायर हो, वो भी वहां पे अप्लाई करे और हर जगह ये जो इश्यू है जहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स हैं और जो लोग कर सकते हैं, जहाँ पे वैसे आर्टिस्ट हैं या अथॉरिटीज थोड़े फ्लेक्सिबल हैं जो अपने रिजिड रूल्स के बाहर कुछ जाके सॉल्व करना चाहते हैं, तो जहां जहां पे जिन जिन को ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो उनको हमारे आइडिया स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये यूएस में किया और जापान में किया। द फोटो वीडियोज राइट्स शेयरिंग, एंड लास्ट वीक हमने फिर से एक जापान में राइट्स शेयर किया। तो आई एम सो हैप्पी कि एक अटेम्प्ट जो शायद मैंने नहीं किया होता तो कितनी जगहों पे ये नहीं होता, और पेडेस्ट्रियन राइट्स के बारे में वापस से पीपल आर रीथिंकिंग एंड डूइंग इट डिफरेंटली, क्योंकि बहुत सालों पहले शायद डिकेड्स बैक दूसरे कंट्रीज ने भी ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया था, बट तब क्या है कि सोशल ये इम्पैक्ट इतना नहीं था, मीडिया इतना फास्ट वाइड स्प्रेड नहीं था। और शायद हमने जब किया तब ज्यादा लोग कनेक्टेड थे वर्ल्ड वाइड। तो we are lucky. तो so good, that is so good. So tell me Soumya कि जैसे अभी आपने बोला आप राइट शेयर कर रहे हो and all that, so you will need a lot, even if you have to do cover like in all of India, अगर आपको ये पेंट करना पड़े, तो are you thinking of starting a school or something? I mean, you already have a painting this na, you already have an art studio, so are you thinking of having training your students with this so that along with them you can मतलब आप ये इस काम को जल्दी कर सको? जैसे आपने बोला आपके लिए टाइम तो इम्पोर्टेंट कि बंद करना पड़े ये वो पेंट आपका
चाहिए, वो वैसा वेदर होना चाहिए जहाँ पे जल्दी से पेंट सूख जाए. I mean, you have so many factors that you have to work with. So are you thinking of starting like a school which trains people only in this three art? You're teaching them so that you have more people to do it. I mean, not alone. ऐसा आप कुछ सोच रहे हो? जी, मैंने इससे भी और एक स्टेप इजी कर दिया है कि मैं किसी को सिखाऊं और वो अप्लाई करे. उससे भी एक और स्टेप इजी कैसे किया कि मैंने उसका स्टेंसिल क्रिएट किया है. तो अगर मैं ये शेयर करूं तो वो कोई भी लेबर या कोई भी लेमैन उसे रिक्रिएट कर सकता है. ओके, सो देन इफ यू अथॉरिटी को दे दिया सो दे कैन डू. क्योंकि ये कितने सारे स्पॉट्स है और कहाँ कहाँ हम पहुंचे. और रिपीटेटिव वर्क मुझे पर्सनली नहीं पसंद. मुझे ऐसे चाहिए कि ये जो है आइडिया जनरेशन, तो मैं अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग सोशल इश्यूज पे काम करूँ. तो मैंने रिसेंटली एक डस्टबिन डिजाइन किया जो सिगरेट बर्ड्स के लिए है. और सिगरेट जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा फेंकने वाले कचरे में से है और वो 10 साल तक जमीन पे रहते हैं और कितने लीटर पानी को खराब करते हैं. ये फर्टिलिटी ऑफ लैंड खराब हो रही है. तो उसका हमने एक डिजाइन किया. तो ये अगर हम आइडिया जनरेशन करें और एक एक प्रोडक्ट निकाले तो फिर सब अपने आप उसे रिक्रिएट कर सकते हैं. हमारी जरूरत नहीं होगी. बट हाँ, ये अलग अलग पॉइंट जो भी मेरे लाइफ में अपने आप आ रहा है मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ. उसके बाद अभी लॉकडाउन था तो मेरे पास कैनवास नहीं थे, इवेंट्स बंद हैं, कुछ भी हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. तो मेरे पास एक हेलमेट पड़ा था. तो मैंने सोचा कि ये सबको हेलमेट पहनना पसंद नहीं है क्योंकि वो स्टाइलिश भी नहीं है इतना. तो कैसे उसको मैंने उसको आर्ट वर्क में कन्वर्ट कर दिया. सो इट्स अ लग्जरियस प्रोडक्ट देन कि आप उसे एज एन आर्ट पीस भी रखो और आप पहन के जाओ तो आपको मजा भी आएगा. तो मैंने ये मार्क किया कि हमें जो अनकॉन्शियस जो ब्रेन है हमारा उस पे हम टारगेट करें तो हम ह्यूमन बिहेवियर्स को बार बार बदल सकते हैं. वाओ. क्योंकि शायद हम बहुत ही एक्सपेंसिव बम्प लगाए, उसकी जगह पे हमने हैंडमेड आर्टवर्क लगाया हो तो लोगों का ध्यान वहां बार बार जाएगा. अगर वो रिपीटेटिवली वहां से गुजर रहे हैं फिर भी एक मजा अलग होता है, हैंडमेड चीज होता है. करेक्ट. तो वी कैन ट्रिगर द ब्रेन्स ऑफ पीपल एंड यूज इट इन अ बेटर वे. That is so brilliant, so brilliantly said. I'm sure this is good parenting right here, Shakuntala ji. Thank you. So tell us about, आप कुछ बोल रहे थे, मतलब in your younger days आप कुछ social service वगैरह कर रहे थे. So is there any social causes that you're working with right now also? देखो, जो भी इवेंट्स होते हैं जिसमें कुछ जो ट्रस्ट अच्छा काम कर रहे हैं तो हम हमारे पेंटिंग्स के द्वारा उनको जो शेयर कर सके हमारा जो प्रॉफिट्स है वो सब हम कर रहे हैं. whether it is HCG कैंसर हॉस्पिटल और अदर women oriented ट्रस्ट. तो ये सब हो रहा है. और बाकी मैं कोई इतनी बड़ी सोशल वर्कर नहीं हूँ कि रोज जाके, बट मैं जो भी रास्ते में आ रहा है वो उसमें जो अगर अच्छा है तो हाँ बोल ही देती हूँ. और अब मैं धीरे धीरे जो अच्छा नहीं है उसे ना बोलने की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ. That is so difficult, which is an art. We all have. Correct. So, Shakuntala ji and Soumya, tell us, would you like to, say something to our viewers, anything, as a closing note? One second. Is anybody wanting to ask Soumya or Shakuntala ji any questions? So we would love to have questions. Let's see if we get any questions. तब तक अगर आपको कुछ बोलना है as a, parting note, then we can start with those. मुझे लगता है कि जो भी विमेन है तो मैंने अभी मार्क किया कि जिनको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, जो
अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, बट जब कुछ करने की बारी आती है तब वो सोचते हैं कि ये तो लड़कों का काम है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब राइट्स इक्वल ले रहे हैं तो हमें इनपुट्स भी इक्वल देने चाहिए। और Right. जैसे हमारे हस्बैंड्स हैं जो हमें प्रोटेक्टिव फील करा रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो विमेन को भी ऐसा बनना चाहिए कि वो हस्बैंड्स को भी अच्छा लगे। तो दोनों तो इक्वल लेना है तो इक्वल देना भी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। नो, जैसे उन लोग बोलते हैं ना दैट स्पाइडरमैन में वो जो एक डायलॉग है, विद पावर कम्स विद ग्रेट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, सो लाइक योर, यू नो, यू गेट द राइट्स, यू हैव योर ड्यूटीज आल्सो, दैट इज सो ट्रू। और क्या होता है कि काफी विमेन जो है ये कहती है कि उनकी वजह से मेरा ये ऐसा हुआ, इनकी वजह से मेरा फ्यूचर ऐसा हो गया। तो शायद हम इतने भी टू गुड नहीं है कि हम हर चीज मानते हैं हर लोग की। तो अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए किसी का कुछ नहीं मान रहे हैं तो दैट इज ओके। मेहनत आप करोगे तो उसमें किसी का ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। मेहनत कर रहे हो, अच्छा सब्जेक्ट है, तो यू गो फॉर इट एंड वर्क हार्ड। यस। और अगर फिर भी कोई लाइफ में ऐसा हो जो बार बार आपको नेगेटिविटी दे रहा है, घर के आसपास के लोग या घर के लोग, तो मुझे लगता है कि अगर हमें जैसे अच्छे लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है और उससे काफी कुछ अच्छा होता है हमारे साथ, वैसे अगर हमें बुरे लोगों की बद्दुआ मिले तो भगवान साक्षात आके हमारा हाथ पकड़ के हमें ऊपर ले जाएंगे। तो करो। आई नो, बट आई यू नो सौम्या, मुझे लगता है एक चीज, यू नो, लॉन्ग बैक आई रेड इन अ बुक कि यू नो एवरीबडी कम्स इन योर लाइफ फॉर अ रीजन, एंड स्पेशली जो बैड लोग हैं वो तो जरूर आते हैं कि आपको वो दिखाने के लिए, लाइक यू विल सी आजू बाजू, यू नो, आपके रिलेटिव्स में ऐसा एक या दो तो लोग विल बी प्लेस्ड आपके सोसाइटी में, आपके वर्क प्लेस में, आपके फ्रेंड सर्कल में और आपके रिलेटिव्स में, एक या दो ऐसे लोग होंगे। एंड आई फील दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू हैव कि you know, God is trying to tell you ये ऐसे मत बनो, और they are trying to tell you ये नहीं बनना, ये सैंपल देख लो, ये ऐसे बनोगे तो ऐसे खुश नहीं रहने वाले आप। ट्रू। तो उस डायरेक्शन में तो मत ही जाओ। दैट्स क्लियर। Absolutely, that is crazy. एंड शकुंतला जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? हाँ, एक्चुअली मैंने लॉकडाउन में बहुत सारे बड़े बड़े पेंटिंग बनाए। मेरे पीछे भी आप देख रहे हो, देखो वॉल, ब्यूटीफुल ह्यूज वॉल है। हाँ, तो वो पेंटिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो लैडर पे चढ़ना उतरना एट 6 स्टिक्स, तो वो मुझे सब विमेन को बोलना है कि आप कुछ शुरू करो। आप सबको ऐसे होता है कि मेरा भी ये उम्र में मैं क्या करूं, ऐसे ही डायलॉग मिलेंगे आपको। किसी को जैसे जिम में जाओ, एरोबिक्स करने जाओ, योगा करो, ये करो, वो करो, तो हाथ पैर हिलाते हैं। हमारा वार्मिंग अप भी उनके लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो मैं हर वुमन के एज इज जस्ट अ नंबर। यस। सीनियर सिटीजन मैंने वो टैग एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया है। आई वांट टू बी अ सुपीरियर सिटीजन। वाओ, दैट्स you know, so much like my mother she doesn't take this, she also has not accepted the senior citizen, she says teenagers, you know, like teenagers. Yes. Oh, yeah. But I love the superior citizens, that is so this, you know, like हम लोग इवॉल्व है, हम लोग यू नो काफी एक्सपीरियंसेस के साथ हैं, अब वो मैच्योरिटी के साथ हैं, और हम तो क्या है अभी भी सीख रहे हैं। हमारा अच्छे थॉट्स है बट एप्लीकेशंस में नहीं है इतना, बट वी आर इन अ लर्निंग फेज एंड दे ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स देन अस। तो right, absolutely. So this has been such a great thing. Do we have any question? Actually आप लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं ना, I'm sure people have already found their answers to so many मतलब achievements आ गए, ज्ञान आ गया, philosophy आ गई, it's amazing, you know, कर्मा आ गया, and then
it's been so beautiful, the whole stories and everything. It is such a pleasure. So I just want to tell everybody that is joining us from Soumya and Shakuntala ji's side, please like our page, subscribe to our page, theparadigmshift.co, on Instagram and on Facebook. What we're doing is we're trying to get people like Soumya and Shakuntala ji who have made a paradigm shift for themselves or for their society, and to change the thought process and so that we all can grow as a society, as a community. And everybody that is joining us from the paradigm shift, please go and follow the 3D artist, 3D painting artist, because they're doing some absolutely wonderful job. And hum log ko jaise, like Soumya said, ki I like to keep creating. So she's made so many things, beautiful things and innovative things which are been the first in the world. So we're going to keep on, we'll stay tuned on her page for lots more action and Yes. lots of new innovative Even I things. don't know what's gonna coming up. And Shakuntala ji, she's going to keep on, Yeah. continuing to motivate people like us and everybody, that who will be like, oh, abhi now I'm menopausal, oh, now I have hormonal problems and all that. Yeah. So we're going to be like motivated by Shakuntala ji, and we're going to be, rocking it in our 60s. Thank you. Right. You see, Soumya, do you see any questions? I don't see any questions as yet. No, all questions answered already. Yeah, No yes, questions. absolutely. Soumya, you're a great artist, and you have all these hearts and all these beautiful comments that are coming, all sorts of this. So thank you so much, Shakuntala ji and Soumya. It was such a great pleasure. I don't think I have enjoyed a conversation as this as much Is as, it? before. Because हम लोग ऐसे बैठे थे जैसे we were just having a cup of tea at a Yeah. quiet. क्योंकि हमें उतना प्रोफेशनल स्पीच आता नहीं है तो But that's what I told you, Soumya, that we are not here to professionally put it. What we're trying to portray is simple people, normal people who are making paradigm shifts. Like, as it shouldn't be an influencer, it shouldn't be like a celebrity, it shouldn't be somebody who's being paid for this. These are simple people who are making so much difference in the society. Oh my God, I'm so happy. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, Yeah, bye-bye. Great session. Bye. Bye.